ہوتے ہیں, بڑے جاتے ہیں, سکون کرتے ہیں, چین کرتے ہیں, آرام سے بیٹھتے ہیں. وہ اس لیے باغ کے اندر جاتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزارے سکون کے اندر, ٹھنڈے وقت کے اندر, درختوں کے نیچے سکون کے لیے, چین کے لیے جاتے ہیں. بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. وہ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح باغ کے اندر جا کر کیا کیا اس نے؟ وہ رویا. کیوں رویا؟ کیونکہ میرے اور آپ کے لیے آگے جو آنے والا وقت تھا وہ بڑا دکھوں سے بھرا ہوا وقت تھا. اور یسوع مسیح نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ باپ میں دعا کرتا ہوں ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہم صلیبی کلمات کی طرف بڑھتے ہیں. جب جو یسوع مسیح نے 7 کلمات صلیب پر کہے, یہ یسوع مسیح کی اتھارٹی کو بھی بیان کرتے ہیں, اس کے اختیار کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. آپ کے سامنے میں حوالہ پڑھوں گا جو پہلے کلمے کے تعلق سے ہے. لوکا کی انجیل اس کا 23 باب, تعلق تو میرا 34ویں آیت سے ہے, لیکن سمجھنے کے لیے, اسے مزید بیان کرنے کے لیے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 32 آیت سے 38 آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا, اور بدکاروں کو بھی, ایک کو دائنی اور دوسرے کو بائیں طرف. یسوع نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور انہوں نے اس کے کپڑے کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا, اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے. اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے, اس نے اوروں کو بچایا, اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے. سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سر کا پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مار کر کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. میں بات کر رہا تھا یسوع مسیح کے اختیار کی, اور ہم نے یہاں پر پڑھا کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا گیا, اسے 2 ڈاکوؤں کے درمیان, 2 چوروں کے درمیان مصلوب کیا گیا. ایک کو دائنی طرف اور ایک کو بائیں طرف رکھا گیا, اور یسوع مسیح کو سینٹر کے اندر بیچ میں صلیب دیا گیا, یہاں پر مصلوب کیا گیا. اور مزید یہاں پر ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو یسوع مسیح کے صلیب کے اوپر ایک تختی بھی لگائی گئی. وہ تختی کیا تھی؟ یسوع ناصری یہودیوں کا, یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اور بائبل بتاتی ہے کہ اس الفاظ کو جو لکھا گیا وہ مختلف 3 زبانوں میں لکھا گیا. وہ عبرانی میں بھی لکھا گیا, وہ یونانی میں بھی لکھا گیا, اور وہ لاطینی میں بھی لکھا گیا. 3 زبانوں کے اندر یہ نوشتہ, یہ پلیٹ یسوع مسیح کی صلیب پر لکھی گئی کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. وجہ کیا تھی؟ کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور اس سے پیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب کھڑا گیا, اس کو قید کیا گیا, سپاہی آئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے, اور سب سے پہلے اسے سردار کاہن کے پاس لے کر گئے. اور سردار کاہن نے اس سے سوال پوچھا, کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا, جو تو کہتا ہے میں ہوں. اور پھر بائبل بتاتی ہے کہ اس کے بعد اسے پلاطوس کے پاس لے کر, جو اس وقت کا بادشاہ تھا, اس کے پاس بھی اس نے کہا, اس سے کہا, اس کے پاس جب حاضر ہوا تو اس نے بھی اس سے کہا کہ جو تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے, کیا تو ہے؟ اس نے کہا, تو ٹھیک کہتا ہے, جو تو کہتا ہے میں ہوں. اور اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر پلاطوس ایک بات کہتا ہے, جب یسوع مسیح اس کے سامنے کہتا ہے کہ میں ہوں, پلاطوس کہتا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھے پکڑنے, قید کرنے کا بھی, مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے اور چھوڑنے کا بھی اختیار ہے. یسوع مسیح نے کہا, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اس بات کو. میرے سر پہ جو کانٹوں کا تاج ہے, میرے ہاتھ جو پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں, اور جو تو نے مجھے ابھی کوڑے لگوائے, اگر تجھے اوپر سے اختیار مجھ پہ نہیں ملتا تو کبھی میرے ساتھ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا. اور بائبل بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ باتیں اس سے کہیں, پلاطوس کا دل جو تھا وہ چھکڑ گیا, وہ تھوڑا سا ٹچ ہوا کہ یہ واقعی خداوند کا کیا ہے؟
बेटा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो बातें कहता था वो बड़े इख्तियार से कहता था, चाहे वो मार खा रहा था, चाहे वो दुखों में था, चाहे परेशानी में था, लेकिन जो जुमले वो बयान करता था, जो कलाम वो बयान करता था, किसी के साथ मुखातिब होता था, उसमें यीशु मसीह की अथॉरिटी नजर आती थी। उसने कहा अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना मिलता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। तुझे मुझ पे इख्तियार दिया गया ऊपर से, खुदा ने तुझे इख्तियार दिया कि इसके साथ ये कर। अगर ये इख्तियार ना मिलता तो तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। बाइबल हमें आगे ये भी बताती है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर था, जब बदरूहों को निकालता था, जब बीमारों को शिफा देता था, बड़े इख्तियार के साथ उन्हें कहता था कि छोड़ो और जाओ। बड़े इख्तियार से क्या साथ कहता था, मफलूज उठ और चल फिर। बड़े इख्तियार के साथ कहता था अंधे को कि बीना हो जा। यीशु मसीह की अथॉरिटी नजर आती है जब इस जमीन के अंदर वो था। और अभी हमने पढ़ा और देखा कि यीशु मसीह सलीब पर, यीशु मसीह को सलीब दिया गया और यीशु मसीह वहां पर कह रहा है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। यीशु मसीह तकरीबन 6 घंटे तक सलीब पर रहा और 7 कलमात यीशु मसीह ने सलीब पर बोले। और आपको मैं बताता चलूं, जब यीशु मसीह सलीब पर था, वो इख्तियार जिस इख्तियार के साथ यीशु मसीह मदरूहें निकालता था, उसी इख्तियार के साथ जिसके साथ वो बीमारों को शिफा देता था, मफलूजों को ठीक करता था और हर तरह के दुख से, परेशानियों से इंसानों को आजाद करता था, मुर्दे जिंदा करता था। जब वो सलीब पर था तब भी उसके पास वैसा ही इख्तियार था, वो इख्तियार था। वो उसने अपने इख्तियार को खोया नहीं था। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह सलीब पर था, कुछ लोग थे जो यीशु मसीह को क्या उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते थे। एक आयत हम जरूर पढ़ेंगे, यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाते थे। ज़बूर 57 उसकी 4 आयत। यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे आ जा, अपने आप को बचा। ज़बूर 57 उसकी 4 आयत अगर किसी को मिल जाए तो जरूर पढ़ें। जी पढ़ें भाई सारिस, अगर आपको मिल गई है ज़बूर 57 उसकी 4 आयत। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ जो अल्फाज यीशु मसीह को कहे जा रहे थे, जो बोले जा रहे थे, वो कैसे उसे लगते थे। शुक्रिया। यहाँ पर लिखा है कि जिनकी जुबान क्या है, तेज तलवार है, उनके अल्फाज ऐसे हैं जैसे भाले की तरह आकर। यीशु मसीह को ये अल्फाज चुभते थे जब उसे ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था जब वो सलीब पर था। अगर तू वाकई खुदा का बरगजीद है, अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। तेरी अथॉरिटी कहां पर है? यहाँ पर जमीन पर था, तू लोगों को बचाता था, गुनाह माफ करता था, मफलूजों को चलाता था, मुर्दे जिंदा करता था। आज तेरा इख्तियार कहां है? अपने आप को तो बचा। यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था उसकी अथॉरिटी का कि ये जो करता था ये ऐसे ही करता था, अब इसके पास इख्तियार नहीं है, अब ये नहीं कर पाएगा। और बाइबल बताती है, ये हवाला आपके सामने मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें घर जाकर, ज़बूर 69 उसकी 20 आयत में लिखा है कि मैं इंतजार करता रहा, कोई आके मुझे तसल्ली दे, कोई आकर मेरे बारे में कुछ कहे, कोई तसल्ली के अल्फाज बोले, कोई मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन किसी ने आकर मुझे तसल्ली ना दी, बल्कि ठट्ठों में उड़ाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे और मुझे लान तान करते रहे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। और खुदा पर यह भी लिखा है कि मेरा दिल अफसुर्दा हो गया। ज़बूर 69 की बात करूं, उसके 20वीं आयत की, मेरा दिल अफसुर्दा हो गया, परेशान हो गया इन तानों से, इस लान तान से। लेकिन जब यीशु मसीह अफसुर्दा था, उसने कहा कि मैं इन लान तान को, इन बातों को ऐसा सीरियस नहीं लूंगा, मैं उसी बात को सीरियस लूंगा जो इख्तियार है। और आज भी मेरे पास इख्तियार है। ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मुझे इनके तानों की कोई फिक्र नहीं, तुम जो बोलते हो मेरे बारे में बोलो। वहां पर लान तान से मैं समझता हूँ मुराद ये भी है कि शायद यीशु मसीह को गालियां देते हो, गालियां निकालते हो सकता है कि ऐसी ऐसी बुरी गालियां भी से निकालते हो, यही मुराद है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा था? ऐ बाप इनको माफ कर,
ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हिस्ट्री बताती है कि जितना ज्यादा वो लान तान करते थे, जितनी ज्यादा बदगोइयां करते थे, जितना ज्यादा यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते थे, उतना ही ज्यादा यीशु मसीह बोलता चला जा रहा था, बोलता चला जा रहा था, बोलता चला जा रहा था, ऐ बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि ये, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। यीशु मसीह अपना इख्तियार वहां दिखा रहा था कि मुझे माफ करने का इख्तियार है। आमीन। मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब के अंदर हमें एक वाकया मिलता है कि यीशु मसीह के पास एक मफलूज को लेकर आए। यीशु मसीह ने मफलूज को कहा उठ और चल फिर। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे गुनाह, फकीयों ने आकर कहा कि ये तो कुफर बकता है, ये कैसे गुनाह माफ कर सकता है, ये खुदा है क्या? यीशु मसीह ने कहा मैंने इसलिए ये कहा कि तुम ये जानो कि इब्ने आदम को माफ करने का भी इख्तियार है, गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। तुम मेरी अथॉरिटी को समझो, मुझे समझो। मैंने इसलिए ये अल्फाज कहे इसके गुनाह क्या हो, माफ हो। है बेटे तेरे गुनाह माफ किए। और आज दोपहर में आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु मसीह जब इस जमीन पर चल फिर रहा था, गुनाह माफ कर रहा था, जब वो सलीब पर था तब भी वो उसी इख्तियार में था। अपना इख्तियार उसने खोया नहीं था। तब भी उसके अंदर वही कुदरत थी, वही ताकत थी, वही अथॉरिटी उसके पास थी। तब भी वो गुनाह माफ करने की क्या रखता था, कुदरत रखता था। इसीलिए अपनी अथॉरिटी से वो वाकिफ था और वो कहता जा रहा था ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एक कपल ही मियां बीवी हन, बड़ा लड़ते हैं। की करते हैं, बड़ा लड़ते हैं। एक दिन इंज होया वो दोवें बैठे आंदे तू अपनियां शिकायतां लिख लै जेड़ियां तेनू मेरे तो ने। उन्हें क्या इंज कर तू फिर अपनियां लिख लै जेड़ियां तेनू। उन्हें शुरू किया लिखना, बीबी ने लिखना शुरू किया मैं देखो टींडे मंगानी है अगो बैंगन लै आउंदा, मैं आनी दही लै गया दुध लै आउंदा, मानिया कच्चे आंडे लैके आ पठान की दुकान तो जाके पक्का लै आउंदा। उन्हें अपनी शिकायतां लिखनियां शुरू। उन्हें एक एडा वाला जेड़ा वो ही ना बना छड़िया, लिख लिख के एक बंडल बना छड़िया। घंटा हो गया उधर बंदा भी लिखी जा रहा, लिखी जा रहा, लिखी जा रहा, लिखी जा रहा। घंटा हो गया बस कर। हुण आइया वेखिए तो सही की तेनू शिकायतां ने। पहला बीबी ने वेखिया, उन्हें वेखिया कि की लिखा। फिर आदमी की जो उसका खामन था उसके पेपर पढ़ने शुरू किए, किसने क्या लिखा है। और हर पेपर पे उसने लिखा हुआ था आई लव यू। आए वो वेखदी गई थल्ले शिकायत आएगी, वो वेखदी गई थल्ले शिकायत आएगी। हर पेपर पे लिखा हुआ था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बताने का मतलब ये जो वहां पर लोग खड़े हुए थे सारे यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे, सारे गालियां दे रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह पता क्या कर रहा था, जो मैंने आपको बताया वो यही कर रहा था। ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसे ही कुछ यीशु मसीह कर रहा था। आज बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर जब माफ़ी आती है, जब गुनाहों की माफ़ी आती है, हम जो इस ट्रेडिशन के अंदर रहते हैं, इस कल्चर के अंदर रहते हैं, लोगों के अंदर रहते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सदका देते हैं बहुत सारे जानवरों का। किस लिए? अपने गुनाहों की माफी के लिए। और ऐसा ही कल्चर मसीहों में भी कुछ गौर से सुनिएगा अब जो मैं बताने लगा, ऐसा ही कुछ कल्चर मसीहों के अंदर भी है। बाज मसीह ऐसा समझते हैं कोई गुनाह कर लिया, कोई गलती कर ली, कोई मुश्किल कर ली, कोई यहो जिहा काम कर लिया जेड़ा गलत है खुदावंद दी नजर च, खुदावंद दे चर्च जाके कोई चढ़ावा दे दईए, कोई चंदा पा छड़िए तो खुदा सानू की कर देगा। सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर ऐसा कर देंगे, कोई अच्छा काम कर देंगे, चर्च में जाके अब खिदमत करना शुरू कर देंगे, हमने गुनाह कर लिया है तो अब जाके प्रस्तिश करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तक हम अपनी जुबान से इकरार नहीं करेंगे और दिल से ईमान नहीं लाएंगे तब तक हम बच नहीं सकते। ठीक है। और जब यीशु मसीह सलीब पर इस इख्तियार को बता रहा था, तो आज दोपहर जो मेरा मैसेज है, जो इस पूरे कलाम का निचोड़ है, वो ये है कि आप में से सुनिए। अम्मा जी एक मिनट सुनिए,
इधर देखो जरा, इधर देखो। जो कलाम आपको सुनाया मैंने, उस सब का निचोड़ ये है कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा है यहाँ पर जो बैठा है कि अगर वो समझता है कि मेरा गुनाह कभी भी माफ नहीं हो सकता, मेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है, मैं तो बड़ा लड़नी हाँ, मैं तो बड़ा लड़ना, मैं तो गालां बड़ियां देनी हाँ, मैं तो इत्थे कुछ ते घर कुछ, मेरे बारे में खुदा क्या सोचेगा, क्या आप मुझे भी कभी माफ कर सकता है? तो आज दोपहर में आपको बताना चाहता हूँ, आज भी यीशु मसीह के पास इख्तियार है। यीशु मसीह के पास आज भी इख्तियार है। जैसा इख्तियार सलीब पर था, जैसा इख्तियार बदरुओं को निकालने का था, आज इख्तियार उसके पास आज भी है। और वो आज भी आपसे कहता है कि मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ। अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बहुत सारे काम हम जिंदगी के अंदर ऐसे कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, जो हमें पता है बुरे हैं, और जो हमें पता है हम ऐसे काम कर रहे हैं जो खुदावंद की नज़र में गलत है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है गलत है, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, फिर भी हम जिंदा हैं, जिंदों की ज़मीन पर हैं, कुछ हमें सज़ा नहीं मिल रही। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह दरमियान में आ जाता है। अब बाप इनको माफ़ कर, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। अब बाप इनको माफ़ कर। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे